चलिए, तो Ode to a Nightingale, one of the finest odes in English literature, written by John Keats, which is in 8 stanzas. कितने stanzas हैं? 8 stanzas. The stanza first, which denotes introduction. इंट्रोडक्शन एक तरह से इंट्रोडक्शन है, ठीक। चलिए, माई हार्ट एक्स एंड a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute and Lethe wards had. It is not through envy of thy happy lot, but being too happy in thy happiness, that thou, light-winged bride of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, sing of summer in full-throated ease. John Keats is saying that my heart is aching, and a drowsy numbness. It seems that there is a drowsy numbness which affects, pains my senses. John Keats is saying that there is a numbness, drowsiness over my senses, and my heart is aching. My heart is aching, and there is a numbness or drowsiness over my senses. As though, it seems as though of hemlock. It seems that I have taken hemlock. I had drunk, or emptied, or I have emptied some dull opium to the drains 1 minute past. तो जॉन कीट्स क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट जो है वो एक कर रहा है, पेन कर रहा है, और मेरी पूरी बॉडी जो है, पूरा कंप्लीट बॉडी जो है, उसमें एक तरह की ड्राउजीनेस है, एक तरह की नमनेस है। यानी मेरे सेंसेस जो हैं वो नम है, ड्राउजीनेस में है। दो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक जो है, हेमलॉक इज अ काइंड ऑफ पॉइजन, जैसे मान लो मैंने कोई हेमलॉक पॉइजन जो है वो पिया हो, आई हैड ड्रंक। जिस हेमलॉक पीने के बाद जैसी बॉडी में इम्पैक्ट आता है, सच काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज देयर। और या फिर ऐसा लगता है दैट आई हैव एम्प्टीड, मैंने खाली कर दिया है क्या, सम डल ऑफियट। ऑफियट ये डल ये नहीं है, डल तो व्यक्ति है, लेकिन डल किसको बता रहा है, ऑफियट को, यानी ऑफीम को। इसका मतलब ट्रांसफर्ड एफिथेट टाइप है। टू दी ड्रेन्स, टू दी ड्रेन्स, यानी इसको पूरा खाली कर दिया कंप्लीटली 1 मिनट, यानी ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले ही या तो मैंने पूरा ओफियम जो है उसको पूरा पी लिया है, या मैंने क्या किया है, हेमलॉक पिया है, और इस वजह से ऐसा लग रहा है दैट माय बॉडी इज, माय सेंसेस आर अंडर नमनेस एंड माय हार्ट इज, ठीक। एंड लिथवार्ड्स हैड, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कौन सी नदी में, लिथे रिवर, जो कि किसको इंडिकेट करती है, फॉरगॉटनेस को। ऐसा लग रहा है दैट आई हैव बीन sunk इन लिथे रिवर, विच इज अ सिंबल ऑफ फॉरगेटफुलनेस। इसका मतलब ही इज नॉट इन कंप्लीट सेंसेस। इट इज नॉट थ्रू एनमी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। John Keats is saying that my heart is aching and I am under drowsy numbness. My senses are numb and I am having some kind of aches, but it is not because of the happiness of
happiness of nightingale. It is not through envy of thy happy lot. The situation of my body, the situation of my mind is not that I am having any kind of envy towards your happiness. But it is, this situation is because of a kind of joy. I am having some kind of joy. I am enjoying your music. But being, but I am, this situation is because, but being too happy, that I am excessively in joyful condition in thine happiness, thine happiness. That thou, because that thou, it seems that thou light winged bride. You are the light winged bride. Bride means है? अब तो आए नहीं, लिखवाया नोट्स में देख लो. Dried of the trees in some melodious. That you are light winged dried of the trees. You are the dried of the trees in some melodious plot, in some melodious place, melodious plate of beach green. Beach green, beach से बना है बीचन, बीच ना, beach green and shadows numberless. बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी शैडोज हैं, उनके बीच में सिंग गा रही हो क्या? ऑफ समर इन full throated is, that your throat is so sweet that it provides easiness, it provides calmness to me, and because of that I am having happiness. I am happy in your happiness. ठीक है, समझे क्या कह रहा है जॉन किट्स? क्या कह रहा है कि मेरा हार्ट जो है एक कर रहा है, और मेरा जो बॉडी है, मेरी जो सेंसेस हैं एक तरह से ड्राउजी है, उनमें क्या है? नमनेस है. क्यों? तो रीजन बता रहा है, कहता है ऐसा लग रहा है जैसे आई हैड ड्रंक हेमलॉक और आई हैव टेकन ओफियम. उन दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है. या मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग. क्यों? जैसे कि मैंने मान लो पूरा डूब गया हूं किसमें? लिथे रिवर में. उस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है. करे ये, इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम एनवी ऑफ योर हैप्पीनेस. आई एम नॉट एनवी ऑफ नाइटिंगल्स हैप्पीनेस, बट आई एम शेयरिंग योर हैप्पीनेस. आई एम हैविंग जॉय इन योर हैप्पीनेस. मैं आपकी हैप्पीनेस में शामिल हूं. क्यों? क्योंकि जब तुम सॉन्ग गा रहे हो, तुम एक तरह से क्या हो? लाइट विंग ड्राइड हो. यू आर द लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज. तुम इन ट्रीज के बीच में एक ड्राइड की तरह हो, एक लाइट विंग्ड ड्राइड की तरह हो, जो इन बीचन ग्रीन जो प्लेस है, बीच ग्रीन जो प्लेस वो है, एरिया है जहां बहुत सारे पेड़ों की क्या है? नंबरलेस शैडोज हैं, शैडोज ऑफ मेनी ट्रीज. एंड उन सब के बीच में यू आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, सिंगर ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज. पूरे ईज के साथ तुम क्या कर रहे हो? सॉन्ग गा रहे हो. एंड इट इज प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस टू मी. और इससे मुझे भी क्या है? हैप्पीनेस मिल रहा है. पढ़ लो एक सेकंड, कोई डाउट है तो पूछ लो. क्लियर? क्लियर? क्या? नहीं नहीं, पी लिया ना उसने, एम्प्टी कर दिया ना, खाली. पहले का हमें क्या पता, पहले का तो कैसा है ना. हम तो सिचुएशन बता रहा है. पीने के बाद उसको ऐसा पिया नहीं है, एक तरह से उसको ऐसा अज्यूम कर रहा है. वो ये कह रहा है जैसे कोई शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसका कैसा बॉडी होती है, वो ठीक वैसा ही कह रहा है कि जैसे अफीम पीने के बाद आदमी की बॉडी पे इम्पेक्ट होता है, हेमलॉक पीने के बाद आदमी की बॉडी पे जो इम्पेक्ट होता है, वैसा ही इम्पेक्ट मैं महसूस कर रहा हूँ. लेकिन ये असर इनकी वजह से नहीं है, ये असर किसकी वजह से है? दाइन हैप्पीनेस, दाई सॉन्ग यू आर सिंगिंग. कौन? नाइटिंगेल. ठीक. और ये माई हार्ट एक्स, इसका मतलब इट इज नॉट पेनफुल, इट इज जॉयफुल. जॉय है. और ये जॉय गेन कहां से कर रहा है? सिंगिंग ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड. ठीक. तो सिंपल सी है बिल्कुल ऐसे. अब सिंपल है वैसे लगने में, तो स्टार्ट में पढ़ते हो तो अजीब सी लगती होगी. अब देखो इसको दोबारा बता देता हूं. क्या कर रहा है?
John Keats is saying that my heart is aching, but it is not painful, it is joyful एक तरीके से. And a drowsy numbness pains my senses. यानी एक ड्राउजी नम्बनेस जो है वो इम्पेक्ट कर रही है किसको? मेरे सेंसेस को. कैसे? दो तरीके से हो सकती है. मानो कंपेयर कर रहा है, एज दो मानो कि मैंने हेमलॉक पिया हो, आई हैड ड्रंक. या तो ये हो सकता है कि मैंने हेमलॉक पिया हो. तो जैसा हेमलॉक पीने के बाद बॉडी करती है वैसा ही मेरे साथ इम्पैक्ट हो रहा है. और एम्प्टीड या मैंने खाली कर दिया है क्या? सम डल ऑफ हिम टू दी ड्रेन्स. ड्रेन्स का मतलब लास्ट हिस्से तक, पूरा लास्ट का जो उसका कचरा बचता है उसको भी पी गया हूँ, सारा ही पी गया हूँ. ड्रेन्स 1 मिनट, 1 मिनट पहले ही वो पिया हो. या लेथे वार्ड सैड संग, या एक तरह से मैं उस नदी में घुस के आ गया हूं जिससे इंसान सब कुछ भूल जाता हो, फॉर गुड फिलनेस कंडीशन हो. माई हार्ट इज एक्किंग. अब इसको भूल जाओ बीच वाले हिस्से को, इसका अब ये तो कंडीशन कर दे ये करा. माई हार्ट एक्स, इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट. ये तो बीच में कंपैरिजन किया उसने, अब यहां से ठीक इसको यहां जोड़ दो. माई हार्ट एक्स, इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट. कि माई हार्ट इज एक्किंग, माई हार्ट इज इन जॉयफुलनेस, इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट. यानी इट इज नॉट नेगेटिव but being too happy, it is because that I am so happy in thine happiness. है? मैं आपकी हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, इसकी वजह से है. that you are light winged dried, you are like winged nymph wood nymph है ना. तो you are wood nymph, तुम ऐसी nymph हो जो जंगलों में रहती हो. light winged dried, कौन? nightingale is light winged dried of the trees in some melodious because of nightingale's voice, melodious place कौन सा? of beach green. beach tree है, beach green ऐसे ट्री बीच जो क्या है? ग्रीन है उसमें, यानी पूरा एनवायरमेंट ग्रीन है. एंड shadows numberless, और जो shadows हैं वो भी numberless है, मतलब there are numberless trees. and there you sing in the month of summer, you are singing in the month of summer in full throat ease, very easily through your throat, and which provides ease to me also. ठीक. दिस इज द सेकेंड पार्ट. दूसरा स्टेंजा, पहला कंप्लीट, दूसरे में देखते हैं. बीच ट्री है, बीच है ना, बीच का मतलब ट्री, बीच इन ग्रीन. ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, ओ thou art a draught of vintage. Vintage here wine, that you are a draught of wine that has, कौन सी वाइन? ऐसी वाइन, ऐसी वाइन that has been cooled a long is, बहुत समय पहले उसको कूल किया गया हो. डीप, नीचे, गहराई में, कहाँ? अर्थ में, है ना. डीप डेल्व अर्थ. that oh for a draught of vintage, that I want, या I want a draught of vintage. कौन सी? यानी इसका मतलब ये किसमें पार्ट लेना चाह रहा है यहाँ? वाइन के थ्रू, वाइन के थ्रू दुनिया को एस्केप करने की सोच रहा है. oh for a draught of vintage that has been cool long ages in the deep delve earth, है ना, जिसको बहुत गहराई में नीचे क्या गया हो? दबाया गया हो. and in which there is taste of flora. लिखवा दिया आपको flora. there is a taste of flora and the country green. कंट्री ग्रीन यानी कंट्री साइड सीन की बात कर रहा है, एक तरह से ऐसी वाइन जो रूरल एरिया में प्रिपेयर होती है. दैट कंट्री ग्रीन एंड द टेस्ट ऑफ फ्लोरा. ठीक. और साथ में क्या है उसमें? डांसिंग एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनब्रंट मर्थ. तो मान लो डांसिंग हो रहा है, सॉन्ग चल रहे हैं, और उसी समय क्या है? सनब्रंट. क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि हम किसके बारे में बात करें? मेडिटेरियन एरिया के बारे में, जहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है. तो एक तरह से वहाँ चाहे पेड़ पौधे हों या फिर व्यक्ति हों, उनकी स्किन क्या हो जाती है? सनब्रंट. उसमें एक तरह से मर्थ है, एक तरह से
एक तरह से मेलोडी है उसमें, सनब्रंट मर्थ। तो कहता है मैं ऐसी वाइन पीना चाह रहा हूं जिसको क्या किया गया होगा, जिसको डीप डेल्व अर्थ वाली सिचुएशन है, जिसमें फ्लोरा का टेस्ट है, जिसमें साथ क्या है, जो कंट्री ग्रीन है, जिसके साथ क्या हो, डांसिंग हो, प्रोविनियल सॉन्ग हो, एंड सनबर्न अर्थ हो। ठीक। ओ, ओ इस प्रकार की वाइन का, ओ फॉर अ बिकर फुल ऑफ वार्म साउथ, साउथ दैट इज फेमस फॉर वाइन मेकिंग, है ना, कि वहाँ की वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू, वहाँ की ट्रुथफुल जो वाइन है उसकी बात कर रहे हैं, द ब्लसफुल हिपोक्रीन, हिपोक्रीन हेलिकॉन, ठीक, ग्रीशियन वाला हिपोक्रेन, विद बीडेड बबल्स, बीडेड बबल्स, बीड मन के जैसे होते हैं, तो बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रीम, जो वाइन है ग्लास में जब वाइन को डाल रहे हैं तो क्या है, एक तरह से ब्रीमिंग कर रही है, बबलिंग कर रही है, एंड पर्पल स्टैंड माउथ, ऐसी वाइन को क्या करना है, उसको पीना है कैसे, पर्पल स्टैंड माउथ, कि आपका माउथ भी क्या है, पर्पल टाइप का है, दैट आई माइट ड्रिंक, ऐसी वाइन को मैं पीना चाहता हूँ, एंड लीव द वर्ड अनसीन, और इस दुनिया को अनसीन करके एक तरह से यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, एंड विद दी फेड अवे इन द फॉरेस्ट टीम, और तुम्हारे साथ जंगल के इस दुनिया में, इस अंधेरी दुनिया में, इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में चला जाना चाहता हूँ। ठीक, पढ़ लो। हम्म, हो गया। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ये किसके बारे में था, दूसरा हिस्सा हमारा वाइन के बारे में। कहता है ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाइन दैट हैज बीन कूल्ड, जिसको कूल किया गया हो लॉन्ग एगो, किसमें, डीप डेल्ड अर्थ में, ऐसी वाइन का मुझे एक गिलास चाहिए जिसमें क्या हो, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा हो, और खुशबू हो कंट्री ग्रीन गांव वाली, उसमें खुशबू हो, एंड वहाँ डांस हो, एंड प्रोविंस सॉन्ग हो, और सन ब्रंट मर्थ हो, मर्थ का मतलब जॉय, एक तरह का जॉयफुलनेस हो। ओ फॉर अ बिकर, बिकर, ऐसा बिकर जो फुल ऑफ वार्म साउथ हो, क्योंकि वाइन कहाँ प्रिपेयर होते हैं, साउथ में, तो वार्म का मतलब एक तरह से इनविगोरेटिंग जो होती है, थोड़ा जोश पैदा करने वाली, फुल ऑफ द ट्रू, ट्रू वाइन, दैट द ब्लसफुल हिपोक्रीन, एक तरह से उसमें क्या हो, हिपोक्रीन जो है कौन सा है, माउंट हेलिकॉन का सर, उसमें भी हो, विद बीडेड बबल्स, बबल्स बीडेड, बीडेड बबल्स बाहर निकल रहे हो, विंकिंग एट द ब्रीम, एट द टॉप ऑफ द ग्लास, एंड उसको टच करे किसके द्वारा, पर्पल स्टैंड माउथ, दैट आई माई ड्रिंक, ऐसी वाइन को मैं पीना चाहता हूँ, एंड लीव द वर्ड अनसीन, और इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ, एंड विद दी हेड अवे इनटू द फॉरेस्ट, एंड आई वांट टू मूव विद यू, आई वांट टू मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस विद यू इनटू द फॉरेस्ट विच इज डिम, विच इज डार्क, है ना, जो डार्क है। क्लियर। दूसरा, fed far away, fed far away, I want to go far away, fed, fed यहाँ से दिख जाना, गायब हो जाना, ठीक, fed far away, dissolve, and quite forget, and quite forget what thou among the leaves has never known, the weariness, the fever, and the fret, here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow, and leaden eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes
और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस को वो है इसका स्टेंजा। और क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है फेड फार अवे, कि मैं तुम्हारे साथ दूर चला जाना चाहता हूँ। डिजोल्व, जहाँ सब चीजें ये खत्म हो जाएं। एंड क्वाइट फॉरगेट, और मैं क्या कर जाऊं, भूल जाऊं। वट एंड क्वाइट फॉरगेट वॉट दाउ अमंग द लीव्स हैज नेवर नॉन, कि तू जो इन लीव्स में रहती हो, तुम इन जंगल में जहाँ रहती हो, जहाँ इन तुम पत्तियों में गाती हो, वो लोग इन चीजों से एक तरह से क्या है, अननोन है। नेवर नॉन मतलब यू आर अननोन। किस चीज से अननोन है, यू आर अननोन ऑफ द वेयरीनेस। कहते तुम जहां रहते हो, जहां तुम गाते हो, तुम बिल्कुल अननोन हो। किससे, वेयरीनेस से, उस थकान से, द फीवर, एनी काइंड ऑफ डिजीज, एंड द फ्रेट, एनी काइंड ऑफ सोरो और मिजरीज, तुम फ्री हो उनसे। ठीक, फेड फार अवे, डिजोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, मैं भी भूलना चाहता हूं जिस चीज को तुमने कभी सामना ही नहीं किया है। किसको, वॉट दाउ अमंग द लीव्स हैज नेवर नॉन, तुमने तो कभी नहीं देखा। किसको, द weariness, द फीवर एंड द फ्रेट। हेयर, जहां मैं हूं वहां, हेयर वेयर मैन सिट, यहां केवल व्यक्ति क्या करता है, बैठता है। सिट एंड हियर, और सुनता रहता है क्या, ईच अदर ग्रॉन, ईच अदर्स सोरोज, ईच अदर्स मिजरीज। वेयर, जहां, पालसी ना, पालसी, लेप्रेसी, लकवा, सेक्स, हिला देता है अफीम, जहां कुछ लोगों को क्या करता है, लकवा मार देता है। एंड लास्ट ग्रे हेयर्स, कुछ लोग जो हैं इतने बूढ़े हो चले हैं, इतने बूढ़े हो चले हैं दैट दे आर हैविंग लास्ट हेयर्स ऑन देयर बॉडी एंड विच आर आल्सो ग्रे। वेयर यूथ ग्रोज पेल, कभी कभी यहाँ ऐसा होता है, जो व्यक्ति किस में है, यूथ एज में है, वो भी पीला पड़ जाता है, यानी वो भी डिजीज हो जाता है। एंड स्पेक्टर थिन, और जब ऐसा होता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी बॉडी जो है, इट इज थिन लाइक अ स्पेक्टर, इट इज थिन लाइक अ घोस्ट। जैसे भूत की बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, वैसे इन लोगों की बॉडी जो है वो थिन हो जाती है यंग एज में, बीमारी की वजह से। और एंड मर जाते हैं, सोरोज हैं, मिजरीज हैं। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, यहाँ इस दुनिया में जहाँ मैं हूँ, वहाँ व्यक्ति किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता, केवल और केवल फुल ऑफ सोरो। यानी दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। ये जो दुनिया है पूरी, ये किसकी दुनिया है, ये दुख की भरी हुई दुनिया है। यहाँ सुख का कोई क्षण नहीं है, और अगर कोई है भी तो वो भी, अगर कोई है भी वो भी टेम्परेरी है। इट इज ट्रांजिएंट, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज नॉट परमानेंट। एंड लेडन, एंड लेडन आई डिस्पेयर्स, और जो आई हैं, आंखें हैं, ऐसा लग रहा है दे आर फुल ऑफ डिस्पेयर्स, वो फुल ऑफ डिस्पेयर्स, उसमें निराशा ही निराशा है, उसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। वेयर, जहां, ब्यूटी, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जो खूबसूरती है वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है। ब्यूटी इज ऑल्सो टेम्परेरी, है ना, तो उसकी जो ब्यूटीफुल आईज हैं वो भी लंबे समय तक नहीं रह सकती, और जब लंबे समय तक नहीं रहेंगे, इसका मतलब उस ब्यूटी को प्रेज करने वाले लोग भी नहीं रहेंगे। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और ऐसा लव जो, ऐसा लव जो अभी तो है फ्रूटफुल, पैशनेट है, लेकिन जब कल आएगा तो वो जो पैशनेट लव है वो भी मुरझा जाएगा, वो भी फिनिश हो जाएगा, वो भी एंड हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसका मतलब यही है कि ये जो दुनिया है इसमें केवल और केवल क्या है, सोरो, है ना। ओ हैप्पी हैप्पी लव, ग्रेशन अर्न वाला वो लव किसमें, जो उसमें अर्न के ऊपर है, लेकिन वो जो दुनिया है इज बर्निंग फॉरहेड एंड पार्चिंग टंग, इट इज फुल ऑफ डिस्पेयर, इट इज फुल ऑफ मिजरी, इट इज फुल ऑफ।
क्या कहता है? फेड फार अवे, फेड फार अवे, तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, डिजोल्व, मेल्ट हो जाऊंगा, एक तरह से घुल मिल जाऊंगा, एंड क्वाइट फॉरगेट, और भूल जाऊंगा, वॉट दाउ अमंग द लिव्स दैट नेवर नोन, यानी जिस चीज को तुम नहीं जानते हो, शायद मैं भी उन सब चीजों को भूल जाऊंगा, क्योंकि अगर जब जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे वो चीजें याद आती हैं, लेकिन शायद तुम्हारे साथ जाऊंगा तो वो चीजें मुझे मेरे जीवन में नहीं आएंगी। कौन सी? द वियरीनेस, वो वियरीनेस, द फीवर एंड द, वो डेस्पेयर, वो डिजीजेस एंड दैट मिजरीज और सोरो। हेयर, यहाँ, वेयर मैन सिट, जहां आदमी बैठता है, एंड हियर, और सुनता है क्या? ईच अदर ग्रॉन, कंप्लेन्स ऑफ ईच अदर, दैट मुझे ये नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला, है ना। वेयर पालसी सेक्स ऑफ यू, जहां कुछ लोगों को कौन मार देता है? लकवा मार जाता है। एंड सैड, सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, और कुछ लोग जो हैं उनको क्या है? उनकी जो बॉडी है उस पर केवल लास्ट फाइनल ग्रे हेयर है, इसका मतलब ही इज टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज लाइफ। वेरी यूथ, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, यूथ ग्रो, यानी बहुत कम उम्र में लोग जो है वो विदाउट ब्लड हो जाते हैं, एक तरीके से पेल दिखने लग जाते हैं। एंड स्पेक्टर थिन, एंड देयर बॉडी सीम्स लाइक अ घोस्ट, थिन लाइक अ घोस्ट, एंड सून दे डाई, और वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। वेयर, जहां केवल और केवल हम सोच सकते हैं किसके बारे में? बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, यानी यहाँ सोचने में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, नथिंग बट ओनली सोरो, इट इज फुल ऑफ सोरो। एंड लेडन आईज, एंड आईज आर लोडेड और हैवी विद डेस्पेयर, आंखों में केवल और केवल क्या है? निराशा है। eyes are full of despairs, eyes are laden with despairs। where, जहां, where beauty cannot keep, where beauty is temporary, beauty is not permanent, beauty cannot keep her beautiful eyes, lustrous eyes, यानी जो those which are beautiful eyes will not remain beautiful forever, they will change, वो भी क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी, यानी खूबसूरती इज टेम्परेरी, इट इज नॉट परमानेंट। और न्यू लव, और जो अभी नया नया प्रेम है, विल पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, विल नॉट रिमेन पैशनेट टिल टुमारो, आज तो ठीक है लेकिन कल तक वो प्रेम भी जाते ही मंद पड़ जाएगा, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के सब चीजों का अंत एक ही क्या है? क्या है? केवल क्या है? वेरीनेस, फीवर एंड फ्रेट, तीन ही चीज है। वेरीनेस है, फीवर है, फ्रेट है, और कुछ नहीं। अब नाउ गो टू द सेकेंड स्टेंजा अगेन। दूसरे स्टेंजा में क्या बताया? क्या बताया? अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, यानी आई वॉन्ट वाइन। कौन सी वाइन? डीप डेल्व अर्थ, जो कहाँ रखी गई है? डीप डेल्व अर्थ में। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, जिसमें टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, एंड कंट्री ग्रीन, जिसमें साथ क्या होगा? कंट्री ग्रीन। दैट वाइन, उस वाइन को लेना चाह रहा ना, उस वाइन में और क्या बताया? जिसके अंदर क्या है? डांस है, प्रोविंशियल सॉन्ग है, सनबर्न्ट मर्थ है, वो बिकर जो फुल है, भरा हुआ है, और साथ में क्या है? बीडेड बबल्स उसमें निकल रहे हैं, ब्रीम उसके ऊपर तक। ऐसी वाइन जो पीना चाह रहा है ना, जिसमें पर्पल स्टैंड माउथ के साथ उसको पीना चाह रहा है, दैट वाइन। एंड विद दैट वाइन आई विल फ्लाई विथ नाइट एंगल, मैं उसके साथ उड़ जाऊंगा, हेड अवे, और तुम्हारी दुनिया में चला जाऊंगा, द वर्ड विच इज डिम। फिर कह रहा नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, आई डोंट वॉन्ट टू गो विद वाइन, अवे अवे, जाओ, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। किसकी? वाइन की। आई डोंट नीड द हेल्प ऑफ वाइन, आई डोंट वॉन्ट टू बी addicted to wine, because
बिकॉज आई विल फ्लाई टू दी, आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो गा, नॉट कैरिएटेड बाय Bacchus, not carried, not under the effect of wine and his parts, and his part, यानी उसके जो भी और सहयोगी चीजें, वही प्रोमिनेंट सॉन्ग, सब चीजें, उन चीजों के साथ शामिल नहीं जाना चाहता, उन चीजों के साथ मैं उड़ना नहीं चाहता, बट ऑन द viewless wings of poetry, viewless, viewless which is dark, जिसको देख नहीं सकते हैं, wings, imagination, imagination, dark imagination of poetry. So मैं किसके साथ जाऊंगा? I will move, I will fly with viewless, which cannot be seen, जिसको देखा नहीं जा सकता है, because it is imagined poetry. तो मैं आपके साथ उड़ना तो चाहूंगा, पर कल्पना की उस दुनिया में जो किससे बनी हुई है, पोइट्री से, विच इज व्यूलेस, जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. क्लियर? अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दाई, नॉट कैरिएटेड बाय Bacchus and its parts, but on the viewless wings of poetry, viewless wings of poetry. Although the dull brain perplexes and retards, though my mind is not in my control, it is under the effect of miseries and sorrows and problems, but still I will try to write. I will try to write poetry. Wings. कैसी poetry? Viewless wings of poetry. Already with thee. और ये क्या? अभी तो मैंने सोचा, और अभी मैं तुम्हारे, यानी विद इन 1 minute of thinking about this viewless poetry, I am under the impact of poetry. I am under the effect of poetry. और मैं तो तुम्हारे साथ हो ही लिया हूं, तुम्हारी दुनिया में घुस चुका हूं, तुम्हारी दुनिया में एंटर कर चुका हूं. Tender is the night. The night is very tender. It is very tender. And happily the queen moon, moon is the queen, इस नाइट का क्वीन कौन है? मून है. is on her throne, moon is sitting on her throne. चंद्रमा, सी, है ना, clustered around by all her starry face. सेंटर में मून है और चारों तरफ क्या है उसके? स्टार्स, स्टार्स हैं. टेंडर इज द नाइट, टेंडर इज द नाइट, बट here there is no light. Tender is the night, but here there is no light. कोई लाइट नहीं है. There is no light. Say what from heaven is with the breezes blown. There is no light. Only, केवल, only what from heaven. कभी कभी जो हेवन से लाइट आती है, कहाँ? Is with the breeze. किसके साथ? हवा के साथ, ब्रीज के साथ. ब्रीज ब्लोन, कहते जब हवा चलती है, जब ब्रीज ब्लो करती है, वर्डस ग्लूम्स एंड विंडिंग मोजी वेज. तो जो ये विंडिंग मोजी वेज हैं और जो ये ट्रीज हैं, इनके बीच में से ब्रीज आती है और तब मुझे क्या दिखाई देती है? वो लाइट दिखाई देती है. अदरवाइज हियर इज नो लाइट. टेंडर इज नाइट, बट देयर इज नो लाइट. ये लेकिन यहाँ कोई लाइट नहीं है. तो अवे अवे और आई विल फ्लाई विद द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइट्री. पढ़ लो. ठीक, चलिए देखिए. तो कहता है क्या? अवे अवे. किसको कह रहा है अवे अवे? वाइन को. क्यों? और आई विल फ्लाई टू दी, आई विल फ्लाई टू दी, यानी नाइटिंगेल, नॉट चैरियटेड बाय Bacchus. ना ही तो Bacchus और ना ही Bacchus के साथ के वो हिस्से, जो सारी चीजें, उनके साथ मैं जाना नहीं चाहूंगा. बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइट्री, बट आई विल गो थ्रू द इमेजिनेटिव पोइट्री विच इज अनसीन, विच इज व्यूलेस. दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स. हालांकि मेरा जो माइंड है, वो अभी ब्रेन है, वो अभी क्या है?
परप्लेक्सेस है, ट्रबल्स में है, मिजरीज में है, सोरोज में है, ऑलरेडी विद दी, लेकिन ये क्या, फिर भी मैं तो तुम्हारे साथ हूं। यानी पोइट्री मेरे मन में स्टार्ट हो गई है, मैं उसको इमेजिन कर रहा हूं। टेंडर इज द नाइट, नाइट इज टेंडर, नाइट इज टेंडर। टेंडर मतलब अभी बहुत गहरी रात नहीं है, पर टेंडर है, नाजुक है। टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पली, एंड हैप्पली, और सामने ही सडनली ही, हैप्पली मतलब अचानक से, हैप्पली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और सामने मुझे कौन दिखाई दे रहा है, क्वीन। क्वीन किसको बोला गया है, मून, जो किस पे है, ऑन हर थ्रोन। क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड अराउंड, उसके चारों तरफ कौन है, फेरी फेस, फेरी स्टार्स। बट देयर इज नो लाइट, यहां कोई लाइट नहीं है, एक्सेप्ट सेव, एक्सेप्ट केवल लाइट कहां से आती है, वॉट फ्रॉम हेवन, जो कि हेवन से आ रही है। इज विद, किसके साथ, ब्रीजेस ब्लोन, जब हवा बहती है उसी के साथ हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। और रोशनी कहां से दिखाई देती है, थ्रू ग्रीन ग्लूम्स, थ्रू वर्डस ग्लूम्स, वर्डस का मतलब ग्रीन, एंड विंडिंग, विंडिंग मतलब घुमावदार, मोजी, मोजी मतलब जो काई लगती है उसको बोलते हैं मोजी, मोजी समझते हैं ना, जो समुद्र में काइया वगैरह लग जाती है, मोजी वेज, या ग्रीन ही मान लो, ग्रीन वेज एंड ग्रीन वेजिटेशन। तो जो ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन वेजिटेशंस हैं, उनके बीच में जब कभी हवा बहती है और जब हवा से पत्तियां अलग हो जाती हैं तो रोशनी की जो हल्की सी चमक आती है वो चमक मुझे दिखाई देती है। अदरवाइज यहाँ देयर इज नो लाइट, कोई लाइट नहीं है, समझ गए। तो कभी कभी जब हवा चलती है तो उन हरे भरे पेड़ों के बीच में से मुझे क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। बट ये जो मैं पोइट्री देख रहा हूं, ये पोइट्री कैसी है, व्यूलेस है, देख नहीं पा रहा हूं, सिर्फ इमेजिन कर पा रहा हूं। और इमेजिन कर पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे क्या लग रहा है, डार्कनेस है, लाइट कुछ नहीं है, डार्कनेस है। तो इसका मतलब जो भी चीजें हैं उनको मैं सिर्फ फील कर रहा हूं, उनको मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो इट मीन्स आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी, देख नहीं पा रहा हूं, आई कैन नॉट सी, देख नहीं पा रहा हूं, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट। अंधेरा है, इमेजिनेटिव केस में है, मुझे पता नहीं लग रहा है वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, कि कौन से फ्लावर्स हैं मेरे फीट्स के नीचे, और व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन दी बोज, और जो बोज हैं, शाखाएं हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की इंसेन है, किस प्रकार की सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, वो मुझे पता नहीं लग रहा है। बट इन एम्बाम्ड डार्कनेस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसी डार्कनेस है जो एम्बाम्ड है, जो फ्रेग्रेंट डार्कनेस है। गैस, अंदाजा लगा रहा हूं, सिर्फ मैं सिर्फ गैस कर पा रहा हूं। ईच स्वीट, सभी सुगंध जो आ रही है कैसी लग रही है, स्वीट लग रही है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ, क्योंकि ये ऐसा मंथ है जिसमें समर का मंथ है। ऐसा क्या मंथ है, सीजनेबल है, यानी अलग अलग चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। इट इज एंडोज, इट इज फुल ऑफ क्या क्या है, ग्रास, ग्रास है, थिकेट है, ट्रीज हैं, एंड द फ्रूट ट्री, फ्रूट ट्रीज हैं, ठीक। वाइट हॉथॉर्न है, एंड द पेस्टरल एग्लेंटाइन, एग्लेंटाइन इज अ काइंड ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। ये सब मैं क्या कर पा रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट सिर्फ मैं इनको किस में देख रहा हूँ, एम्बार डार्कनेस में, एंड दिस इज आई एम गेसिंग, और मैं क्या कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, फास्ट फेडिंग वायलेट्स, वायलेट्स हैं जो बहुत जल्दी फास्ट फेडिंग हो जाते हैं, वो भी किस में दिख रहे हैं, पत्तियों के बीच में दिख रहे हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, और जो मई महीने का सबसे पहले खिलने वाला चाइल्ड है, यानी सबसे पहले खिलने वाला फ्लावर है। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, द कमिंग musgroves full of baby wine, the murmurous haunt of flies on summer breeze। उसके साथ साथ ही मैं किसको देख रहा हूं, मरमरस हॉन्टिंग, किसकी,
ऑफ फ्लाइज ऑफ बीज ऑन समर इवनिंग। ठीक है, पढ़ लो। यानी कुल मिला के किसका डिस्क्रिप्शन है इसमें? नेचर का, प्रकृति का। तो यहां किसके बारे में बात कर रहा है? ये प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। उसी नेचर को रिप्रेजेंट हमारे सामने पिक्चोरियल क्वालिटी दिख रही है इसमें। इट डिनोट्स द पिक्चोरियल एंड सेंसुअल क्वालिटी ऑफ जॉन कीट्स। कहता है आई कैन नॉट सी, मुझे पता नहीं लग रहा है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, कि कौन से फ्लावर्स जो हैं वो हैं मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, है ना। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन दाई, वो, और ये भी नहीं पता मुझे कि आपकी शाखाएं जो हैं इन पर किस प्रकार की फ्रेग्रेंस है, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जान पा रहा हूं। बट इन balmed darkness, it is a fragrant darkness, और उसी के थ्रू मैं गैस कर पा रहा हूं। ईच स्वीट वेयर विद द सीजनेबल मंथ, ये जो सीजनेबल मंथ है यानी जिस सीजन में हूं उस सीजन के जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी फ्लावर्स हैं, वो हमें दिख रहे हैं। इट इज एंडोज, इट इज डेकोरेटेड, किसके द्वारा? ग्रास है, थिकेट है, एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और वाइल्ड फ्रूट ट्रीज हैं, वाइट थॉर्न है, एंड पेस्टोरल फ्लावर्स दिख रहे हैं, एग्लेंटाइन है, फास्ट फेडिंग वायलेट, वायलेट्स हैं जो फास्ट फेडिंग है, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, अप्रैल के आसपास आते हैं, मई में खत्म हो जाते हैं। कवर्ड अप इन लीव्स, ये किसके अंदर कवर्ड हैं? लीव्स में, वो निकलते हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, और मिड मेज फर्स्ट चाइल्ड है यानी फर्स्ट फ्लावर है। द कमिंग, द ब्लूमिंग, कौन ब्लूम कर रहा वाला है? मस्करोज, मस्करोज है, जो मस्करोज दिख रहा है इट इज फुल ऑफ ड्यू, ड्यू है उसके ऊपर, ड्यू समझ गए, ओस, ओस की बूंदी है। एंड इट इज लाइक अ वाइन, जो ओस की बूंद है एक तरह से क्या है? वाइन की तरह है, जिसको जो फ्लीज होती हैं, जो भी है ना, मधुमक्खियां या जो भी तितलियां वगैरह उस पे आती हैं, उसको चूस के जाती हैं, तो एक तरह से उसके लिए किसके करती हैं? वाइन की तरह काम करती हैं, है ना, ड्यूवी वाइन्स। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, और मैं सुन पा रहा हूं क्या? मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर इवनिंग, समर इवनिंग पे उनकी हॉन्टिंग भी मुझे सुनाई दे रही है, किसकी? बीज की या फ्लाइज की। क्लियर? तो इन दोनों हिस्सों में हम क्या देख रहे हैं? नेचर, है ना, ये पूरा नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर वाला हिस्सा यहां से लेके और यहां तक पूरी सेंसस और पिक्टोरियल क्वालिटी दिख रही है जॉन कीट्स की। डार्कलिंग आई लिसन, कहता है डार्कलिंग इन सच अ डार्कनेस, डार्कनिंग का मतलब डार्कनेस, यानी ये जो दिख रहा है सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ा ना, टेंडर इज नाइट बट देयर इज नो लाइट, नाइट तो टेंडर है बट लाइट नहीं है, क्या है? एम्बाम्ड डार्कनेस, चारों तरफ डार्कनेस है, देख तो कुछ पा ही नहीं रहा हूं, तो क्या है? डार्कलिंग, है ना, द डार्कनेस। इन दिस डार्कनेस, ये जो डार्कनेस में अभी महसूस कर रहा हूं उसमें ही क्या कर रहा हूं? आई लिसन, मुझे सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? वो एंड में एंड कर देगा, मुझे सुनाई देता है, आई लिसन, क्या? एंड फॉर मैनी अ टाइम, और ये आज ही नहीं, इससे पहले भी मैंने सुना है, फॉर मैनी टाइम्स। आई हैव बीन, ऑटोबायोग्राफिकल बोल रहा है इसमें खुद का एक तरह से, है ना, ऑटोबायोग्राफिकल टोन है इसकी। ऊपर वाले भी ऑटोबायोग्राफिकल है, जिसमें क्या कर रहा है? जिसमें फीवर और फ्रेट की बात कर रहा है, वो भी वही चीज है। आई हैव बीन हाफ इन लव विद इज फुल डेथ, कहता है आई हैव बीन हाफ इन लव विद इज फुल डेथ, और called him soft names in many amused rhymes. John Keats is saying that I have written many poetry, and in my poetries I have called the word death with many soft names. मेरी पोइट्रीज में मैंने डेथ को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है, बल्कि उनको बहुत सारे सॉफ्ट नेम के साथ मैंने उसको
एड्रेस किया है। क्यों? कि मुझे डेथ से कोई नफरत नहीं है। डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। तो कहता है आई हैव बीन हाफ इन लव। तो मुझे इस वर्ड से, कौन सा? वो वर्ड जिसको मैं सुन रहा हूं, फॉर मेनी ए टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। आई वांट टू डाई, बट आई वांट टू डाई विदाउट पेन। आई डोंट वांट टू डाई पेनफुल डेथ, आई वांट टू डाई ईजफुल डेथ। है ना? ऐसे मर जाऊं कि मुझे पता ही नहीं लगे कि रात को सोए उठे ही नहीं। आई वॉन्ट टू डाई इन सच काइंड ऑफ डेथ। आई हैव बीन हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ, कोल्ड हिम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव कोल्ड हिम। हिम मतलब डेथ, पर्सोनिफाइड कर दिया डेथ को। आई हैव कोल्ड हिम सॉफ्ट नेम, मैंने उसको बहुत बार सॉफ्ट नेम से पुकारा है ना? मतलब मैं कभी भी उसके प्रति बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजिंग करने वाला नहीं रहा हूं। इन मेनी आ म्यूज टाइम इन माई पोइट्री, मैंने उस पोइट्री में उसको बहुत बार एड्रेस किया है, बहुत बार बड़े सॉफ्ट नेम से पुकारा है। टू टेक इन टू द एयर, टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट, ताकि क्या हो? टू टेक इन टू द एयर, किस हवा में शामिल कर दे, किसको? मेरी ब्रीथ को, मेरे श्वास को। तो मेरा श्वास निकल जाए तो आई विल बी इन ईजफुल डेथ। सडनली आई विल बी इन ईजफुल डेथ, ईजफुल डेथ। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई। And John Keats is saying that at present I am in the imaginative power and I am with you, Nightingale. And at this time I have no pain. I don't have any kind of pain. So it is the most suitable time for me to die. इसलिए ये सबसे सुटेबल टाइम है मेरे लिए कि मैं मर जाऊं। It seems rich to die. इस समय this is the appropriate time for me to die. To seize upon the midnight, to seize, to die upon the midnight with no pain, कोई पेन नहीं, without any pain, I want to die. While, मैं तो चला जाऊंगा, while thou art pouring, still you will be singing thy song, thy soul abroad in such an ecstasy. तुम तो फिर भी अपना सॉन्ग इसी आनंद के साथ, इसी जॉय के साथ गाते रहोगे, हालांकि वो सॉन्ग मेरे काम का नहीं होगा। आई हैव ईयर्स इन वैन बिकॉज आई एम ऑलरेडी डेड, सो इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर मी। आई हैव डेड, स्टिल वुड दाउ सिंग, बट स्टिल यू विल बी सिंगिंग, स्टिल यू विल बी सिंगिंग, still you will be singing to thy high requiem become a sword, become a sword। और जब मैं मान लो उस मिट्टी का हिस्सा बन जाऊं, मैं उस मिट्टी में शामिल हो जाऊं, सोड का मतलब सोइल, मैं उस सोइल या उस मिट्टी में शामिल हो जाऊं, then it will be a requiem, your song will be like a religious church song, है ना? It will be like a funeral song because I will be no more। तो कहता है कि इस समय मैं क्या करना चाहता हूं? I want to die। So what do you understand with the word die or death? That John Keats is in full mood of escapism. He wants to escape from this world because he is full of sorrows. So he wants to die, and this is the appropriate time because he is with Nightingale। हो गया? तो समझ में आ गया? कहता है इन डार्कनेस, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है इसका। इन डार्कनेस आई लिसन, मैं सुन रहा हूं। कौन सा सॉन्ग? दिस इज द सॉन्ग रिक्वीम, है ना? एक तरह से फॉर मेनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव। हाफ इन लव किसके साथ? ईजफुल डेथ। ईजफुल डेथ मतलब डेथ विदाउट पेन, है ना? ईजफुल डेथ। Called him
आई हैव कोल्ड हिम, कोल्ड डेथ, क्या, सॉफ्ट नेम्स, किसमें, इन मैनी पोइम्स ऑफ माइन, मेरी जो पोइट्री है उसके अंदर। टू टेक इन टू, टू टेक इन टू, और मैंने उसे पुकारा है कि मुझे ले जाओ, टू टेक इन टू द एयर, कि निकाल के ले जाओ क्या, माई वाइट, मेरा सांस। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, नाउ इस समय, मोर देन एवर, और ये सबसे बढ़िया मौका है, सीम्स इट रिच टू डाई, दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू डाई, टू सीज, to seize upon the midnight. I want to die with no pain, no pain. While thou are pouring forth. क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, pour कर रहे हो क्या, thy soul abroad in such an ecstasy. Still would thou sing, तुम फिर भी गाते रहोगे, हालांकि मैं नहीं रहूंगा लेकिन तुम रहोगे, है ना। And I have ears in vain, इसका मतलब I am dead, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा। To die high requiems, it will be a funeral song, like a funeral song become of this soil, उसके लिए तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये सॉन्ग कैसा होगा, funeral song होगा, it will be a requiem of a sort, क्लियर। तो ये भी क्या है, एस्केपिज्म को दिखा रहा है। 7th स्टेंजा, thou was not born for death, किसको बोल रहे हैं, आदमी तो क्या हो गया, मर गया, और कह रहे तुम नहीं मरोगे। thou was not born for, पावर ऑफ आर्ट एक तरीके से, है ना, thou are not born for death. John Keats is saying that nightingale is not born for death. डेथ के लिए बनी ही नहीं है, बिकॉज यू आर द इमोर्टल बर्ड, यू आर द इमोर्टल, नाइटिंगेल इज इमोर्टल, इमोर्टल, आप हमेशा से इमोर्टल हैं। नो हंग्री जनरेशंस, नो हंग्री जनरेशन, नो हंग्री जनरेशन ट्रीट दी, नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन। तो बहुत सारी जनरेशन चली गई, हंग्री जनरेशन का मतलब वही है, फिलोमिला का रेफरेंस मैंने बता दिया आपको कि नाइटिंगेल को जो है फिलोमिला से, फिर उसको जब काट मार दिया उसके बाद नाइटिंगेल बनी, लेकिन फिर भी फिलो यानी नाइटिंगेल को लोग खत्म नहीं कर पाए। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, ट्रेड का मतलब कुचलना, है ना, दमन करना, कि तुम्हें खत्म नहीं कर पाई। जनरेशन बहुत सारी आई, बहुत सारी चली गई, बट यू आर स्टिल देयर बिकॉज यू आर इमोर्टल बर्ड। आप इमोर्टल हैं, इसलिए आप दुनिया में अभी भी हैं, आपको कोई खत्म नहीं कर पाया, आपको कोई एंड नहीं कर पाया। कैसे? द वॉइस, द सॉन्ग विच नाइटिंगेल सिंग्स, I hear this passing night was hard. I hear this passing night was hard in ancient days. जिस सॉन्ग को मैं आज सुन रहा हूं, शायद नाइटिंगेल के इस सॉन्ग को पहले भी सुना होगा। किसने? एम्परर्स ने एंड क्लाउन्स ने। पहले बहुत सारे जो मस्करे थे, राजा थे, उन्होंने सुना होगा, पक्का सुना है। Perhaps the self same, the same song which I'm myself listening, the self same song that found a path, that found a place through the sad heart of Ruth, Ruth the widow, वो जो महिला थी, विडो थी, जो जंगल में अकेले थी, तो वो इस सॉन्ग को उसने भी सुना होगा। रूथ when sick for home, जब वो अपने घर की तलाश में ऐसी जगह थी, she stood in tears, she was weeping amid the alien corn, among the strange cornfields, alien मतलब unknown cornfields। कहते जब ये रूथ थी, जिसका रेफरेंस हमने लिया है बाइबल से,
और ये जब अपने दुखी जीवन में जब अकेली थी, अननोन कॉर्नफील्ड में थी, तो वहां जब ये रो रही थी, उस समय उसने भी आपका सॉन्ग सुना होगा। ये वो सॉन्ग जिसको एम्पर ने सुना, ये वो सॉन्ग जिसको क्लाउन्स ने सुना, ये वो सॉन्ग जिसको मैं सुन रहा हूं, उसी सॉन्ग को रूथ ने भी अपने फॉरलॉर्न में, अपने दुखी समय में, उस एलियन कॉर्नफील्ड में इस सॉन्ग को सुना होगा, इस सॉन्ग को सुना होगा। स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, द सेम, द सेम, द सेम दैट ऑफन टाइम, ये वही सॉन्ग है जिसको कभी कभी सुना जाता होगा। कहां? हैज चार्म्ड मैजिक कैसमेंट, हैज चार्म्ड, इसने उसको चार्म दिया होगा, किसको? उन मैजिक विंडोज को, उन खिड़कियों को, वो जो खिड़कियां हैं, वो विंडोज हैं, वो जो कैसमेंट्स हैं, ओपनिंग जो शायद खुलती हैं, ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज, वो समुद्र के किनारे, जो खतरनाक समुद्र है उनके किनारे जो कोई किला बना हुआ है, कोई कैसल बना हुआ है, उसकी जो खिड़कियां है ना, वहां भी इस सॉन्ग को सुना गया होगा। यानी एक तरह से इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया है, मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान लो कोई राजकुमारी है और उसको वहां सीज कर दिया, बंद कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया, और जब अचानक उसको भी नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनता है तो उस खिड़की को खोलती है और अपनी उदासी में उस सॉन्ग को सुनती है। इन फेयरी लैंड्स और लॉर, तो तुम वहां भी ये जो सॉन्ग है वो सुनाई देता है, लेकिन ये सॉन्ग फिर कैसा है? फॉरलॉर्न, उदासी वाला है, फॉरलॉर्न। तो जो सॉन्ग मैं सुन रहा हूं, जो सॉन्ग एम्परर ने सुना, जो सॉन्ग क्लाउन्स ने सुना, जो सॉन्ग रूथ ने सुना, जो सॉन्ग इम्प्रिजन प्रिंसेस ने सुना, और उसमें उसने क्या सुना? फॉरलॉर्न। यानी जब जब लोग उदास हुए, जब जब लोग दुखी हुए, जब जब लोग हताश हुए, जब जब लोग निराश हुए, तुम्हारा सॉन्ग सबके बीच में था, सबके साथ था। एंड दैट फॉरलॉर्न, और मेरे साथ भी क्या है? फॉरलॉर्न है, वही उदासी का भाव है। पढ़ लो इसको। जी, हो गया? तो क्या है, कहता है thou was not born for death. John Keats is saying that nightingale is not born for death because it is an immortal bird, immortal bird. No hungry generations. It is a reference of Philomela Terrace, है ना? कहता है जब फिलोमिला को डेथ किया गया, मारा गया, उसके बाद ऐसा है कि वो नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो गई। बहुत सारी हंग्री जनरेशन आई जिन्होंने नाइटिंगेल को कुचलने का, मारने का प्रयास किया, लेकिन आपको खत्म नहीं कर पाए। दाई वॉइस, तुम्हारी जो वॉइस है, आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हार्ड, जिस सॉन्ग को मैं सुन रहा हूं, इसको पहले भी सुना गया इन एंशिएंट डेज, किसके द्वारा? एम्परर्स के द्वारा और क्लाउन्स के द्वारा। तुम्हें वहां भी सुना गया, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग, और इसी सॉन्ग को दैट फाउंड अ प्लेस थ्रू दी सैड हार्ट ऑफ रूथ, रूथ विडो, उसने भी इस सॉन्ग को सुना। कब? व्हेन शी वाज इन sick for home, she stood in tears, she was weeping amid the unknown cornfields, unknown cornfields में। the same, ये वही सॉन्ग है that often times, इसको सुना गया होगा कई बार, and charmed magic casement, मैजिक से वहां से अगर रेफरेंस के हिसाब से लेंगे तो ये मान लो कि ऐसा कोई जादूगर व्यक्ति जो अपने जादू के सहारे किसी लड़की को, किसी प्रिंसेस को उठा के ले जाए और समुद्र के किनारे किसी महल में ले जाके उसको कैद करते हैं, है ना? अपने जादू के दम पे ले जाए कैद कर दे, और वो महिला जो है, वो लड़की जो है, प्रिंसेस जो है, वो अब स्ट्रेस में है, दुखी है, मिजरी सोरो उसके साथ है, और अचानक उसको सॉन्ग सुनाई देता है, तो क्या करती है? समुद्र के किनारे उस खिड़की को खोलती है और उसके सॉन्ग को सुनती है ना? तो द सेम दैट ऑफन टाइम्स हैज चार्म्ड, चार्म्ड मैजिक कैसमेंट्स, ऐसे कैसमेंट्स, ऐसे विंडोज जिसको मैजिक पावर से किसी को, प्रिंसेस को यहाँ लाके कैद किया गया है। ओपनिंग
जब उसको वो लड़की जो कि खोलती है, ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज। वो जो महल भी है, वो जो किला भी है, समुद्र के किनारे बना हुआ है, और पेरिलस सीज, सीज बहुत खतरनाक समुद्र है, इन फेरीलैंड्स, वहां भी ये सॉन्ग सुनते हैं। और सॉन्ग में क्या सुनाई दे रहा है? फॉरलॉर्न, उदासी। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। कहता यही वर्ड जो फॉरलॉर्न वर्ड है, फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक अ, ये जो वर्ड है फॉरलॉर्न, उदास, उदासी वाला जो भाव है, अकेलेपन का जो भाव है, इट इज लाइक अ बेल। एक तरह से क्या है? बेल है, एक बेल की तरह है। इट इज लाइक अ बेल टू टोल मी, टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। तो मेरे भी यही सॉन्ग, यही चीज मुझे भी सुनाई दे रही है। माई सोल, मेरी खुद की सोल को, माई सोल सेल्फ, यानी मुझे वापस वही दुनिया बुला रही है, वही उदास दुनिया, वही मुझे वापस बुला रही है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ केवल इमेजिनेशन में हूं, एंड दिस इमेजिनेशन इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्परेरी। तुम मुझे बेवकूफ बनाते सकते हो, तुम्हारे सॉन्ग के साथ मैं अपने आप को बेवकूफ बना तो सकता हूं, लेकिन नॉट परमानेंटली, बट टेम्परेरी। अड्यू, इसलिए अलविदा, बाय बाय बाय, अलविदा। Thy fancy cannot cheat so well. Thy fancy cannot cheat so well. This imagination cannot cheat so well. कि तो जो इमेजिनेशन, जो कल्पना मैं कर रहा हूं, ये मुझे इतनी अच्छे से चीट नहीं कर सकती कि मैं वास्तविकता को भूल जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। दो सीज फेम टू डू, हालांकि मुझे पता है आदमी जब कल्पनाओं में होता है, इमेजिनेशन में होता है, तो वो एक तरह से बेवकूफ बन जाता है। एंड यू आर फेमस टू डू दिस, और आप फेमस है इस चीज के लिए, इंसान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने के लिए यू आर फेमस फॉर इट। पर फिर कौन कहता है लौटा नवाब वापस लौट के आ? इट इज नॉट रियल, इट इज इमेजिनेटिव, ये काल्पनिक है, ये रियल नहीं है। डिसीविंग एल्फ, यू आर द डिसीविंग एल्फ, यू आर द डिसीविंग स्पिरिट। तुम तो धोखा, धोखा देने वाली स्पिरिट है एक तरह से। ये तो धोखा हो रहा है, पर ये कुछ देर के लिए सही है, इसलिए मुझे पता है कि लौट के मुझे जाना तो वापस वही है। एड्यू एड्यू, अलविदा अलविदा। दाई प्लेनेटिव एंथम फेड्स पास्ट द नियर। तुम्हारा जो ये सॉन्ग है, ये जो सॉन्ग है, जो उदासी में काम आने वाला फॉरलॉर्न वाला सॉन्ग है, एंथम है, अब धीरे धीरे ये जा रहा है, वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। रिटर्निंग बैक पास नियर द मीडोज। ये किसी अब घास के मैदानों के पास से वापस रिटर्न हो रहा है। धीरे धीरे ये मंद होता जा रहा है, मंद होता जा रहा है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम्स, जो शांत स्ट्रीम है, स्टिल स्ट्रीम्स जो है, उनके ऊपर से गुजरता हुआ, पीछे निकलता हुआ जा रहा है। अप द हिल साइड, अरे ये कहाँ पहुंच गया? वो पहाड़ियों की साइड में चला गया। अप द हिल साइड, एंड नाउ इट इज वेरी डीप, और अब ये बिल्कुल दूर चला गया है, एक तरह से बिल्कुल दूर। कहाँ? इन द नेक्स्ट वैली ग्लैड्स। वॉज इट अ विजन? ये हमने इतनी जोर देर से जो देखा, वॉज इट अ विजन? क्या ये विजन था, और आ वेकिंग ड्रीम, या फिर ये सपना था? इट वॉज अ ड्रीम। फ्लैड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक स्लीप? ये जो मैंने म्यूजिक सुना, ये जागते हुए सुना या फिर सोते हुए सुना, पता नहीं, बट म्यूजिक तो सुना। मतलब चलिए कंप्लीट कर देते हैं इसको। दिस इज ऑल, है ना? इट इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स, आपकी भी होगी पता नहीं। फॉरलॉर्न कहता है उदासी, फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक अ, द वेरी वर्ड, वही वर्ड, कौन सा? फॉरलॉर्न, इज लाइक अ बेल, किसके? विच इज टोलिंग मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। मुझे भी वही संगीत सुनाई दे रहा है वापस। अड्यू, अड्यू, द फैंसी कैन नॉट सीड सो वेल। मुझे पता है
कि तुम्हारी ये जो इमेजिनेशन है, जिस कल्पना में मैं हूं, ये मुझे इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकती, या ज्यादा देर तक मैं बेवकूफ बन के नहीं रह सकता हूं। हालांकि सी इज इमेजिनेशन इज फेमस टू डू, हालांकि कल्पना इंसान को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत फेमस है। डिसीविंग, इट इज अ डिसीविंग एल्फ। डिसीविंग एल्फ का मतलब डिसीविंग स्पिरिट। इमेजिनेशन एक प्रकार की क्या है, डिसीविंग स्पिरिट है, बना सकती है आदमी को। अड्यू अड्यू, अलविदा अलविदा, दाई प्लेनेटिव एंथम, दाई सैड सॉन्ग, दाई प्लेनेटिव एंथम फेड्स। अब ये फेड हो रहा है और कहाँ जा रहा है, पास द नियर मीडोज, नियर मीडोज, घास के मैदानों से, ओवर द स्टिल स्ट्रीम, है ना, जो शांत धाराएं उनके ऊपर से, अप द हिल साइड, अप द हिल साइड, एंड नाउ इट इज वेरी डीप, और अभी दूर चला गया है, इन द नेक्स्ट वैली ग्लैड्स, वो उस अगली वैली में जहां एक खुला स्थान है, ग्लैड्स हैं, वहां पहुंच गया है वो। अब ये कह रहा है, वॉज इट अ विजन, क्या ये कोई दृश्य था, और आ वॉकिंग ड्रीम, या फिर कोई वैकिंग ड्रीम था, कोई वैकिंग ड्रीम था। फ्लैट, इट हैज फ्लाइट, ये उड़ चला है, दूर चला गया है, तो म्यूजिक अब जो है वो फ्लैट हो गया है, गायब हो चुका है। डू आई वेक, क्या मैं जिंदा हूं, और स्लीप, या फिर मैं सो गया हूं। तो क्या आप जिंदा हैं या आप सो गए हैं? प्राइम स्कीम इसकी मैंने पढ़ा दिया आपको, फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने इसमें बता दिया आपको, कब लिखी, क्या हुआ, सब समझा दिया मैंने आपको, पढ़ लेना। दिस इज ऑल अबाउट नाइटिंगेल। वन अच्छी, बहुत अच्छी पोइम आपके सिलेबस में एक एलिजी है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।